Hi everyone, welcome to a new episode from DGMZ. For all our returning viewers and subscribers, we are very happy that you could join us again. And for all the new viewers who are tuning into the podcast for the first time, we are very glad that you discovered us and decided to tune in and explore the podcast. As always, for the new viewers, my strong recommendation would be to access the introduction to DGMZ episode because that episode will give you a good insight into the objective, motivation, and inspiration behind this podcast. Also, for your awareness, we have two playlists currently running. One playlist is dedicated to these ghazal episodes where we pick up one ghazal at a time from Diwan Ghalib and share personal impressions around it. The second playlist, on the other hand, deals with topics which are non ghazal topics, still focused on Urdu poetry, still focused on Mirza, also at times events at DGMZ. So do explore both the playlists and access episodes which interest you. In addition, we do post on the community tab from time to time in terms of information or again events at DGMZ. So check that out too. You can access that in the community tab. Wherever the comments are open, do share your comments. It is encouraging to hear and read your reaction to the content we post, the content we work hard on. So it's always good to hear some feedback around it. All the viewers who have taken the effort to share their feedback and put comments, we are grateful that you did that. It's much appreciated. Okay, so now getting into the ghazal. If you had tuned into our last episode, you would know that we started ghazal 14 from Diwan Ghalib. It is a fairly long ghazal, so we completed, I think, one, two, three, four. We completed the first four couplets from the ghazal in the previous episode. So we are going to pick up from the fifth couplet onwards in this episode. And let's see how far we go. I had read the entire ghazal in the last episode. So if you want to access that, it is available in the previous episode. For today's episode, I will read the three couplets I plan to cover today, just for continuity. And then we will get into the impressions verse by verse. So here is the fifth couplet. है ख्याल हुस्न में हुस्न अमल का सा ख्याल, है ख्याल हुस्न में हुस्न अमल का सा ख्याल, खुल्द का एक दर है मेरी गोर के अंदर खुला, मुंह ना खुलने पर है वो आलम कि देखा ही नहीं, मुंह ना खुलने पर है वो आलम कि देखा ही नहीं, जुल्फ से बढ़कर नकाब उस शोक के मुंह पर खुला, दर पे रहने को कहा और कह के कैसा फिर गया, दर पे रहने को कहा और कह के कैसा फिर गया, जितने अरसे में मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला. So let's dive right into it. The fifth couplet. है ख्याल हुस्न में हुस्न अमल का सा ख्याल. अब आप देख रहे हैं वर्ड प्ले तो इमीडिएटली इंजॉय करना शुरू कर देते हैं एज अ रीडर हम लोग, राइट. हुस्न को इतनी बार यूज़ किया है, ख्याल को इतनी बार यूज़ किया है और हर बार एक अलग मीनिंग है, राइट. सो पहली बार जब यूज़ करते हैं तो बोल रहे हैं है ख्याल हुस्न में. सो ख्याल हुस्न
the imagination of beauty, the thought of beauty. Khayal husn, khayal is an idea, a thought, an imagination. Husn is beauty. So है ख्याल हुस्न में हुस्न अमल का सा ख्याल. एंड यहाँ पर बात जो है वो पिवट करती है इन अ टिपिकल गालिब स्टाइल, राइट. सो हुस्न अमल क्या होगा? सो ख्याल हुस्न तो समझ लिया, हुस्न अमल क्या होगा? सो हुस्न अमल इन एसेंस ही इज टॉकिंग अबाउट अ गुड डीड, बट उसको थोड़ा हम लोगों को अनपैक करना पड़ेगा. सो जैसा हम हमेशा सुनते आए हैं, राइट, कि थॉट और एक्शन में एक बहुत लंबा डिस्टेंस होता है. सिर्फ किसी चीज़ के बारे में सोचना उसका होना नहीं हो जाता है. एक सोच को एक्चुअली रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत एक्शन लगता है, बहुत डिटर्मिनेशन लगता है. देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन अ थॉट टर्निंग इनटू एन एक्शन. सो ये हमको पता है, राइट. अब गालिब इस फंडामेंटल बात को उल्टा कर रहे हैं, राइट. वो कह रहे हैं हाँ, बाकी दुनियावी चीज़ों के लिए प्रॉब्ली ये फॉर्मूला चलता होगा, बट यहाँ बात हो रही है मेरी बिलवड की, यहाँ बात हो रही है मेरी बिलवड की. ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है, ये एक ऐसी अच्छी चीज़ है, ये एक ऐसी पाक चीज़ है, ये एक ऐसी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चीज़ है जिसके बारे में सोचना ही होना है. तो ये जो इसकी एंड हुस्न हमेशा वो लिटरल सेंस की जो ब्यूटी होती है, फिज़िकल ब्यूटी होती है, सिर्फ उसके बारे में नहीं होता है. हुस्न इज़ ब्यूटी विद गुडनेस, राइट. सो यहाँ पे एक एक पूरी पैकेज की बात हो रही है. इट्स नॉट जस्ट फिज़िकली देखने में सुंदर हैं, बट फिज़िकली देखने में सुंदर हैं, दिल से पाक हैं, रूह से पाक हैं. उनको पिछली वर्स में, लास्ट एपिसोड में, एक वर्स में परी पैकर, परी जैसा, लाइक अ फेरी, राइट. सो यहाँ पर एक बहुत ही कंप्लीट शख्सियत की बात कर रहे हैं अपनी बिलवड के कॉन्टेक्स्ट में गालिब, कि खूबसूरत ना सिर्फ शक्ल से, सूरत से, बट सीरत से भी, अंदर से भी, दिल से भी, रूह से भी. सो गालिब कह रहे हैं ये एक ऐसी अच्छी, प्यारी, खूबसूरत शय है, एंटिटी है, जिसके बारे में अगर आपने सोच लिया तो वही एक पुण्य हो गया, वही एक सबब का काम हो गया. सोचना इज़ इक्वलेंट टू एक्चुअली डूइंग अ गुड डीड. इतनी अच्छी चीज़ है ये, इतनी अच्छी चीज़ है ये. अब ऐसी ऐसी जो फेथ और रेवरेंस होती है, ये सिर्फ भगवान के लिए ही दिखती है. जहाँ हम मान के चलते हैं कि भगवान के घर गए अगर, तो बस मंदिर में सर टका दिया, उसकी ज़मीन से भी अपना सर लगा दिया, तो धुल के पाक साफ़ हो जाएंगे. चर्च में गए, उसके नाम का पानी भी अगर अपने सर से लगा लिया तो धुल के पाक साफ़ हो जाएंगे. मस्जिद में गए, सेम थिंग. उनके घर में घुस गए, उनके सामने झुक गए, अपना सर उनकी दहलीज से लगा लिया तो पाक साफ़ हो जाएंगे. ऐसा मैजिकल प्रॉपर्टी जहाँ सिर्फ उनके बारे में सोचने से आप पाक साफ़ हो जाते हैं, आप एक पुण्य कमा लेते हैं. ये तो बस गॉड के लिए ही सुना है, और किसी के लिए तो कभी सुना नहीं है कि कहीं भी बैठ के आपने खुदा का नाम ले लिया तो वहीं का वहीं दुआ कबूल हो जाएगी, गुनाह माफ़ हो जाएगा, है ना. सो उस टाइप की एक क्वालिटी अपनी बिलवड के लिए बोल रहे हैं गालिब कि हुस्न ख्याल में है हुस्न अमाल का सा ख्याल. सो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनके बारे में जिस वक़्त मैं सोच लेता हूँ, उस वक़्त ऐसा लगता है कि जैसे सबक का काम हो गया. ऊपर कहीं जन्नत में मेरे नाम के आगे एक पुण्य जुड़ गया. इतना पाक है,
ये इंसान, और इतना पाक है इसके बारे में सोचना। क्योंकि ये इतना पाक है इसलिए इसके बारे में सोचना इतना पाक है कि इट्स ऑलमोस्ट एज इफ़ आई हैव डन अ गुड डीड, मैंने एक पुण्य कमा लिया, एक सबब का काम कर लिया। सो बहुत खूबसूरत है ये पहली लाइन। एंड देन दूसरी लाइन में वो कहते हैं, खुल्द का एक दर है मेरी गोर के अंदर खुला। सो एक अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन कर लेते हैं जल्दी से। खुल्द इज़ पैराडाइज, इटर्निटी, the heaven that we are all promised. Gore is your grave. So इसमें भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट प्रॉबली अच्छा रहेगा। अगर हम देखें पुराने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को, तो इजिप्शियन कल्चर में तो बहुत, पर इवन बाकी कल्चर्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पुराना एक ट्रेडिशन रहा है कि जब आप किसी को दफनाते हैं मरने के बाद, तो कब्र में आप उसके साथ चीज़ें रखते हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं वो हर कल्चर में अलग है, हर टाइम में, हर सिविलाइजेशन में उनका अलग लॉजिक था, चीज़ें अलग थी, उनका रीज़न अलग था, पर चीज़ें हमेशा इंसान के साथ दफनाई जाती थी। कुछ कल्चर्स में माना जाता था कि भाई इस इंसान की फेवरेट चीज़ें इसके साथ दफना दो, क्योंकि कल को जब इसकी रूह या स्पिरिट वापस आएगी तो उसको अपनी फेवरेट चीज़ें मिलेंगी। कई कल्चर्स में कहा जाता था वो लोग टूम्स की दीवारों पर पूरे पूरे मैप्स और नक्शे एंड स्पेल्स लिख देते थे कि भाई जब ये लौटेगा तो अब इस दुनिया में तो रहा नहीं है, अब इसको दूसरी दुनिया में जाना है, तो दूसरी दुनिया में जाने का इसके लिए नक्शा, मैप, राउट हम चार्ट कर देते हैं इन दीवारों पे। इनको पढ़ के ये अपने आगे प्रोसीड कर सकता है। कई लोग जो थे वो चीज़ें देते थे जो उनको लगता था कि अब इस ज़िंदगी में तो इन चीज़ों की इसको ज़रूरत नहीं है, पर अगली ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ सकती है। सो रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स रखते थे उसके साथ, कई लोग ऑल्टर रखते थे, ऑफ कोर्स खाना, बर्तन, कपड़े, ये सब चीज़ें भी रखी जाती थी। सो इस कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि इंसान जब अपनी कब्र में जाता है तो बड़ी प्रिपरेशन के साथ जाता है। और ये कल्चर और ये ट्रेडिशन बहुत पुराना है कि कब्र में अब जा रहे हैं, अब यहाँ तो आराम ही आराम है, यहाँ से तो निकलने वाले नहीं है ना यहाँ से तो निकलने वाले नहीं है, तो सब सरो सामान लेके पहुँचे अंदर कब्र में, ताकि आने वाली ज़िंदगी, आने वाली जर्नी जो है उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हों। Sorry about that, there was somebody at the door. So like I was saying, पुराने ज़माने के जो ट्रेडिशंस थे, ये सब इनका एक ही मुद्दा था कि जिन अजीज़ों को हमने खो दिया है उनको जब हम दफनाएं तो वो उस कब्र में अकेले ना हों, लॉस्ट ना हों, दुखी ना हों, अनसपोर्टेड ना हों। तो ये सारे ज़रिए थे टू मेक देम फील एंड प्रॉब्ली इन रिलेशन मेक अस फील दैट वी हैव टेकन केयर ऑफ देम। हम उनको वहाँ अकेला अंधेरे में छोड़ के नहीं आए। बहुत हार्ड होता है किसी अजीज़ को वहाँ छोड़ के आना। एंड आई थिंक ये सारे रिचुअल्स, ट्रेडिशंस उस चीज़ का सहारा बनते थे। आज भी इतना इलेबोरेट नहीं, बट फिर भी लोगों की टेंडेंसी होती है बिफोर बरियल ग्रेव में, कॉफिन में एक्चुअली कुछ फेवरेट चीज़ या तो जो डिसीज़ हो गए उनकी या अपनी रख देना, इस आशा में कि भाई ये आपका साथ देगी। ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है और इसको आप मैं ही समझें, और ये मैं आपके साथ कॉफिन में रख रही हूँ। अब इस तरह से मैं आपके साथ रहूँगी, या ये आपकी फेवरेट चीज़ है, आपके साथ कॉफिन में रख रही हूँ, ये आपके साथ रहेगी। सो वो बहुत प्यारा ख्याल है, बहुत प्यारा ट्रेडिशन है, एंड उसका कॉन्टेक्स्ट समझना अच्छा रहता है, क्योंकि फिर आप ये दूसरी लाइन और ज़्यादा समझ पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। सो दूसरी लाइन में गालिब कह रहे हैं कि खुल्द का एक
दर है मेरी गोर के अंदर खुला। सो पहली लाइन में उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि मेरी बिलवड का तो ख्याल ही करना अपने आप में एक ऐसी पाक रूहानी चीज़ है, क्योंकि बिलवड खुद एक इतनी पाक रूहानी परी पैकर जैसी चीज़ है, राइट। तो पहली लाइन में उन्होंने वो इस्टेब्लिश कर दिया, और दूसरी लाइन में वो ये कहते हैं कि इसका ख्याल लेके चला गया मैं अपनी कब्र में, है ना। और कुछ बटोरने का समय नहीं मिला, और कुछ बटोरने का मन भी नहीं था, और किसी चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस ही कभी ज़िंदगी भर नहीं दी सिवाय इसके। तो अब मरते समय जब फैसला करने का वक्त आया कि भाई क्या क्या लेके कब्र में जाओगे, क्या क्या ख्याल, क्या क्या मेमोरीज़, क्या क्या चीज़ें कब्र में अपने साथ ले जाना चाहोगे जो अब तुम्हारा इटर्निटी तक साथ देंगी। तो गालिब कहते हैं हम तो बस ये एक ख्याल लेके चले गए अपनी कब्र में, इस बिलवड का एक ख्याल लेके चले गए। और फिर गालिब गोज ऑन टू से कि यकीन जानिए सिर्फ इस एक ख्याल के बूते पे उस 6 फुट गहरी कब्र में ऐसा हो गया कि एक जैसे छोटा दरवाज़ा खुल गया विद डायरेक्ट एक्सेस टू पैराडाइज। तो आप तो जानते हैं कि कब्र का अंधेरा, कब्र की अकेलापन, कब्र की तन्हाई कैसी होती है। वहाँ पे रोशनी की कोई जगह नहीं है, वहाँ रोशनी पहुँच नहीं सकती है, हमेशा हमेशा का एक अंधेरा है, वो एक ऐसी जगह है। बट गालिब कहते हैं क्योंकि इनका ख्याल लेके चला गया था मैं अपनी कब्र में, क्योंकि इनके बारे में सोचता हुआ चला गया था अपनी कब्र में, तो ये मिरेकल हुआ कि कब्र में एक दर खुल गया, एक दरवाज़ा खुल गया जो कि डायरेक्ट मुझे आसमान दिखाता था। तो सोचिए कब्र में लेटे हैं और उसमें एक ये दरवाज़ा उनके सामने खुल गया हमेशा के लिए, जो कि उनको डायरेक्टली आसमान, जन्नत का नज़ारा दिखाता था। ये पावर है गालिब की बिलवड के थॉट में, ये पावर गालिब एक्सप्लेन कर रहे हैं शेर में। बहुत ही खूबसूरत शेर है। खुल्द का एक दर है मेरी गोर के अंदर खुला, और अब ये खुला रहेगा इटर्निटी के लिए, इटर्निटी के लिए, हमेशा के लिए। गालिब की कब्र से एक डायरेक्ट दरवाज़ा, खिड़की, जो आप समझना चाहें, जन्नत का नज़ारा उन्हें दिखाती रहेंगी। अब वो चीज़ जो कि एक इतनी खौफनाक, दर्दनाक, अंधेरे से भरी होने वाली थी, कितनी रूहानी, कितनी मैग्निफिसेंट हो गई गालिब के लिए। होता है प्यार में तो ये ताकत होती है अंधेरे को रोशनी में बदलने की। बट हाँ, बहुत बहुत प्यारी तरह यहाँ एक्सप्लेन किया। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। मुंह ना खुलने पर है वो आलम की देखा ही नहीं, जुल्फ से बढ़कर नकाब उस शोक के मुंह पर खुला। अब अगेन आप वर्ड प्ले देख रहे हैं, खुला खुला बार बार, राइट। सो मुंह ना खुलने पर है वो आलम की देखा ही नहीं। सो अब मुझे गज़ल का नंबर तो याद नहीं है इस वक्त ऑफ द कफ, बट इन वन ऑफ द प्रीवियस गज़ल्स आई डिड कवर इन ग्रेट डिटेल हिजाब, और हिजाब किन के सामने पहना जाता है, किन के सामने नहीं पहना जाता है। सो शॉर्टली एंड ब्रीफली पुट, नकाब पहनती हैं औरतें इस्लाम में। बहुत एक सिलेक्टेड ग्रुप है जिसके सामने हिजाब या नकाब पहनने की ज़रूरत नहीं है, वरना ऑन अ नॉर्मल डे आपको नकाब और हिजाब पहनने की ज़रूरत सबके सामने है, सबके सामने है। एंड बेसिकली गालिब पहली लाइन में ये कह रहे हैं कि मुंह ना खुलने पर, अब मुंह इस फेस, माउथ भी हो सकता है, बट यहाँ पर इट इज़ रेफरिंग टू द बिलवड्स फेस। मुंह ना खुलने पर
without opening of the face. And literal translation opening of the face है, but what that means is without the revelation of the face, without the disclosing of the face, right? Without seeing the face. So मुंह ना खुलने पे है वो आलम की देखा ही नहीं. Without even seeing her face, मैंने वो नज़ारा, वो काउंटेनेंस, वो रेडियंस, वो ब्यूटी देखी है जो मैंने कभी नहीं देखी थी. कभी नहीं देखी थी मैंने. ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी. और ये तब है जबकि नकाब उठा नहीं है. ये तब है जबकि फेस पूरा मैंने अभी तक देखा नहीं है. फेस ढका हुआ है, छुपा हुआ है. इस वेल्ड स्टेट में मैंने वो ब्यूटी देखी है जो कि मैंने कभी नहीं देखी. वो बोलते हैं ना कि देखा ही नहीं, वो आलम की देखा ही नहीं. That's how it is coming across to me. And of course, in the true spirit of the podcast, what I'm sharing here is just how I am perceiving the ghazal. This might not be 100% accurate translation or accurate interpretation, but this is how it is coming across to me. कि गालिब कह रहे हैं कि मुंह कभी उन्होंने अपना खोला नहीं, दिखाया नहीं, और उस पर ये आलम है कि ऐसा नज़ारा मैंने कभी देखा नहीं, ये खूबसूरती मैंने कभी देखी नहीं. एंड सेकेंड लाइन में वो कहते हैं जुल्फ से बढ़कर नकाब उस शोक के मुंह पर पड़ा. सो वो जो आलम देखा नहीं, दैट इज़ कनेक्टेड टू द सेकेंड लाइन, राइट? सो गालिब कहते हैं कि नकाब आप पहन सकते हो, काला नकाब आप पहन सकते हो जैसे सब पहनते हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो जुल्फ़ें हैं उनसे बेहतरीन, उनसे मुकम्मल आपके लिए कोई नकाब होगा ही नहीं. अब इसमें 2-3 बातें हैं. एक तो कहना चाहते हैं कि जुल्फ़ें इतनी घनी हैं, इतनी वॉल्यूमिनस हैं कि दे आर जस्ट लाइक अ कर्टन, जस्ट लाइक अ फुल फ्लेज्ड मास्क. सो बालों की खूबसूरती बयां करना चाहते हैं कि अगर ये जुल्फ़ें गिर जाएं आपके मुंह पे तो इतनी घनी, इतनी काली हैं कि इनसे ज़्यादा कोई नकाब, कोई हिजाब क्या ढाकेगा आपका फेस. ये तो उस 15-20 नकाब के बराबर की प्रॉब्ली हैं ये जुल्फ़ें. सो एक तरीके से तो जुल्फ़ों की खूबसूरती बताना चाह रहे हैं. और दूसरी बात ये बताना चाह रहे हैं कि नकाब, हिजाब, जुल्फ़ें, कुछ भी डाल लो अपने चेहरे पे, ये चेहरे की खूबसूरती छुपा नहीं सकती, छुपा नहीं सकती हो. पर अगर छुपाना चाहती हो मुझसे अपने चेहरे की खूबसूरती, तो टेक माई सजेशन एंड जुल्फ़ों को नकाब बना लो, क्योंकि इनसे बेहतरीन और इनसे अच्छा नकाब तुम्हारे चेहरे के लिए कोई नहीं है. इतनी घनी, इतनी काली हैं ये कि ये पूरा चेहरा ढाक लेती हैं, छुपा लेती हैं. सो वही गालिब का बिल्कुल टिपिकल डाइकॉटमी, राइट? छुपाना है तो मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से छुपाओ मोस्ट इफ़ेक्टिवली, बट साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जितनी भी जद्दोजहद कर लो, इस चेहरे की खूबसूरती मुझसे छुपा नहीं सकती. मुझे तो दिख रही है, मुझे तो दिख रही है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. दर पे रहने को कहा और कह के कैसा पलट गया, जितने अरसे में मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला. सो दर पे रहने को कहा. ऑफ कोर्स बिलवड की बात कर रहे हैं कि बिलवड ने अल्टीमेटली फाइनली एक इनविटेशन दिया मुझे कि आओ मेरे दरवाजे पे रह सकते हो तुम. मेरे दरवाजे पे रह सकते हो. अब लिटरली दरवाजे पे बिठाएंगी कि घर के अंदर जो सबसे पहला कमरा बाहर कहीं, जैसे होता था ना पुराने ज़माने के घरों में, एक चबूतरा सा, एक कुछ वहाँ पे बिठा दिया, कहाँ बिठा दिया पता नहीं, बट हाँ घर की एकदम जो एकदम
most what is the word I would like to use, जो घर की जो सबसे बाहर की लिमिट्स हैं वहाँ पे इनवाइट करा है कि आके वहाँ रह लो, और कह के कैसा फिर गया, इनवाइट किया और फिर उसके बाद वेंट बैक ऑन हर प्रॉमिस, रिट्रैक्टेड द इनविटेशन दिया कि आके मेरे दरवाजे पे रहो, और फिर रिट्रैक्ट कर लिया उस इनविटेशन को. एंड व्हाट वाज द स्पीड ऑफ दिस गिविंग द इनविटेशन एंड रिट्रैक्शन? जितनी देर में मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला. अब बिस्तर से अब यहाँ पर लिटरल बिस्तर की बात नहीं हो रही है, ऐसा मुझे परसीव होता है. ये वो जो आपको पता नहीं याद हो, शायद आप में से कईयों ने यूज़ किया हो, पुराने ज़माने में एक वो बिस्तर बंद होता था, होल्ड ऑल टाइप का, राइट, जिसमें बिस्तर भी होता था, कपड़े भी होते थे, चप्पल भी होते थे, जो इट वाज लाइक अ बैकपैक, बट इट हैड अ स्लीपिंग बैग और अ स्लीपिंग मैट्रेस इन इट. तो वो बिस्तर बंद लेके इंसान बस वो एक चीज़ में सब कुछ हो जाता था, उसको उठा लेता था, जहाँ जाता था उसमें से पूरी फिर जैसे गृहस्थी निकलती थी. तो मुझे लगता है उस टाइप का कोई बिस्तर बंद रहा होगा गालिब का. और गालिब कह रहे हैं कि भाई उसको हमने खोलना ही चालू किया था, अभी अनपैकिंग चालू ही की थी कि इनविटेशन रिट्रैक्ट हो गया. एंड काफ़ी काफ़ी एक किस्म का शिकायत लग रही है कि गालिब कर रहे हैं कि मतलब ये कोई बात हुई? या तो आप इनवाइट ना करें, और अगर इनवाइट करें देन ऑनर योर इनविटेशन ना, ऑनर योर इनविटेशन. एक तो आपने इतने दिन इनवाइट नहीं किया, उसके बाद इतनी मुश्किलों से तो आपने इनविटेशन दिया, और उसके बाद ये कुछ मिनटों में उसको रिट्रैक्ट भी कर लिया. और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शौकी से गालिब शेर में बात कहना चाह रहे हैं, बट उसके अंदर छिपा हुआ दर्द कैमोफ्लाज नहीं हो पाता है भाई. अब जब बिस्तर बंद खुल रहा होगा, कितनी ख्वाहिशें जाग रही होंगी, कितनी उम्मीदें जाग रही होंगी कि चलो अब उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि इनके आसपास तो रहेंगे, ठीक है, इनके दर पे पड़े रहेंगे, इनके दरवाजे में पड़े रहेंगे, ये एकदम जो बाहर घर से डिसकनेक्टेड सा एक गेस्ट हाउस है उसमें पड़े रहेंगे, बट एटलीस्ट इनके पास तो रहेंगे, इनकी विसिनिटी में रहेंगे, इनके दायरे में तो आए. अब ये कहीं भी जाएंगी, कहीं भी आएंगी, मर्सिडीज़ निकलेगी, वापस जाएगी, दिखेंगी तो आते जाते मतलब वही काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए कि रोज़ इनका दीदार हो जाएगा. पड़े रहेंगे यहीं. वैसे भी इनके ख्यालों में, अपने घर में भी वही है कि अपने घर में भी रहते तो इनके ख्यालों में, अब इनके घर में भी इनके ख्यालों में रह लेंगे. तो उम्मीदें तो बंद ही होंगी, ख्वाहिशें तो जागी होंगी. सोचा होगा गालिब ने कि चलो कुछ राहत तो मिलेगी, कुछ राहत तो मिलेगी, दूर से ही देखने को मिलेंगी पर मिलेंगी. और इतनी देर में इनने आके इनविटेशन रिट्रैक्ट कर लिया. एंड यहाँ पर जोक्स असाइड फ्लिपेंट नेचर दिखता है बिलवेड का, बहुत ही फ्लिपेंट, इनडिसाइसिव, कैजुअल. मुझे तो बड़ा गुस्सा आया पढ़ के ऐसे कैसे करते भाई, मत बुलाओ, और अगर बुला रहे हो तो फिर ऑनर करो ना, ऐसा थोड़ी कर सकते हो तुम किसी के साथ कि वो बेचारे अनपैक कर रहे हैं और आपने उतने में उनको फिर से पैक करने को कह दिया. तो गालिब वो भी कैप्चर कर रहे हैं बिलवेड की टेम्परामेंट को, राइट, कि विश्वास नहीं कर सकते इनका विश्वास नहीं कर सकते, इनके टेम्परामेंट का विश्वास नहीं कर सकते. कभी हाँ है, कभी ना है, हाँ में भी दम नहीं है, ना में भी दम नहीं है, सोच समझ के नहीं करती हैं. और या फिर इतनी ज़्यादा शशोपंज में रहती हैं कि बैक एंड फोर्थ होता रहता है. आ जाओ, चले जाओ, बैठ जाओ, उठ जाओ, हाँ ना. तो वो भी एक किस्म का एक a flavor of the beloved's temperament is somewhere captured in this couplet. So बुरा तो बहुत लगा कि गालिब को ऐसे किया इन्होंने कि बुलाया और फिर रुखसत कर दिया फटाफट. बिस्तर बंद खुलने का
टाइम भी नहीं दिया। बट गालिब की नेचर का वो जो एक था ना पहलू, जो कि उनकी गज़लों में बार बार आता है, ये आई एक्सेप्ट यू एज यू आर वाला जो एस्पेक्ट है वो दिखता है यहाँ पे कि ठीक है चलो चले जाते हैं। फिर बुलाया था तो आ गए थे, जाने को कह रही हैं तो चले जाते हैं। आप राजा हो, आप जो कहोगे करेंगे। प्यार करते हैं आपसे, है ना। योर विश इज़ माई कमांड। बट थोड़ी देर रहने देते तो अच्छा था, है ना। एक आध दिन रहने देते तो अच्छा था। Anyway, so that brings us to the end of the three couplets we had planned for this episode. अब कितने बचे हैं? एक, दो, तीन, आई थिंक तीन और बचे हैं। उनको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट करेंगे, जस्ट टू अवॉइड दिस एपिसोड गेटिंग टू लॉन्ग। आपको भी सुनने में सहूलियत होगी, अगर छोटा एपिसोड होगा मुझे भी रिकॉर्ड करने में आसान होता है। सो look forward to completing this ghazal in the next episode with all of my dear viewers. And till then, everybody, lots of love and light to you. Thanks for watching.